Hallo DLG Familie, ना wie geht's? ये वीडियो आपकी चूज़ की गई वीडियो है जिसको आपने सबसे ज़्यादा वोट्स दिए हैं और ये किस बारे में है? hören और lesen पार्ट डेटासेट एग्ज़ाम का, जिसका पूरा फॉर्म ये होता है, जिसका मतलब है जर्मन टेस्ट इमिग्रेंट्स के लिए। और डेटासेट हम जर्मनी में कब देते हैं? जब हम पीआर लेना चाहते हैं, परमानेंट रेजिडेंस, या हम जर्मन नेशनैलिटी लेना चाहते हैं। तो इस एग्ज़ाम को आपने पास करके इसमें B1 लेना होता है, तब आपको ये चीज़ें मिलती हैं। और ये आप वीडियो उन सब के साथ शेयर कर सकते हैं जो आपके फ्रेंड्स या स्पाउस जल्दी ही ये एग्ज़ाम देने वाले हैं। लोस गेट्स। इस एग्ज़ाम का सबसे पहला पार्ट hören होता है, जिसके लिए हमें 25 मिनट का टाइम दिया जाता है। इसमें 4 मल्टीपल चॉइस टास्क होती हैं और Teil 1 में हमने क्या करना होता है? Ansagen am Telefon, öffentliche Durchsagen verstehen। अनाउंसमेंट्स जो टेलीफोन पर हों या फिर पब्लिक अनाउंसमेंट्स जो होती हैं उनको समझना होता है। टाइल 2 में भी हमारे पास 5 मल्टीपल चॉइस होते हैं और इसमें हमने kurze Informationen in den Medien verstehen, शॉर्ट इंफॉर्मेशंस जो कि मीडिया में हों उनको समझना होता है। और उसके बाद टाइल 3 के 8 पार्ट्स होते हैं, 4 उसमें रिश्तिश oder falsch और 4 MCQs होते हैं। और इसमें हमने alltägliche Gespräche verstehen, हर दिन में होने वाली जो गुफ्तगू होती है उसको समझना होता है। और टाइल 4 आखिरी पार्ट होता है। इसमें हमारे लिए 3 टास्क होती हैं जो कि Zuordnungsaufgaben होती हैं, इसको हमने मैच करना होता है। इसमें हमने unterschiedliche Meinungen zu einem Thema verstehen, मुख्तलिफ ख़यालात जो लोगों के होते हैं किसी एक टॉपिक के बारे में, उनको समझकर टास्क को मैच करना होता है। अब डेटा सेट का जैसे हमने देखा कि लेवल A2/B1 है, तो इसमें ऑलरेडी आपको ठीक ठाक जर्मन आती होती है। होगन में क्या करना है, आपने अपनी कॉपी और पेंसिल तैयार रखें। सारे के सारे ऑडियोज़ आप सुनेंगे और एंड पर उसके सल्यूशंस देखेंगे कि कितने आपके सही आंसर्स आए और कितने नहीं। फील ग्लुक। Tilg. Deutschtest für Zuwanderer. Übungstest 1. Hören Teil 1. Sie hören 4 Ansagen. Zu jeder Ansage gibt es eine Aufgabe. Welche Lösung A, B oder C passt am besten? Markieren Sie Ihre Lösungen für die Aufgaben 1 bis 4 auf dem Antwortbogen. Beispiel: Guten Tag, Frau Baumgart. Hier ist Peter Lieberts von der Firma Sinus. Sie haben sich bei uns als Mitarbeiterin in unserem Callcenter beworben. Wir haben Ihre Bewerbungsunterlagen durchgesehen und möchten Sie zu einem Kennenlerntag am Mittwoch, den 8. März einladen. Das heißt, Sie kommen einfach vorbei und schauen sich an, wie wir hier arbeiten. Falls Sie Fragen haben, rufen Sie bitte Frau Heine unter der Nummer 474819 an. Auf Wiederhören. Nummer 1. Guten Tag. Hier ist Claudia Kessler von den Stadtwerken Düsseldorf. Herr Matuschek, wir waren gestern bei Ihnen, weil wir in Ihrem Haus den Stromzähler ablesen wollten. Leider waren Sie nicht zu Hause. Bitte rufen Sie uns an und machen Sie einen neuen Termin. Unsere Telefonnummer ist die 50 68 14. Vielen Dank und auf Wiederhören.
Nummer 2. Hallo, hier ist Adam Fischer von der Agentur für Arbeit. Frau Böhmer, Ihr Bildungsgutschein ist da. Sie können jetzt eine Weiterbildung machen. Die Kosten dafür übernehmen wir. Außerdem bezahlen wir während Ihrer Weiterbildung die Kinderbetreuung für Ihre beiden Töchter. Wir brauchen nur eine Bescheinigung des Kindergartens. Kommen Sie doch bitte am 5. April in mein Büro und wir füllen die Formulare zusammen aus. Danke und auf Wiederhören. Nummer 3. Guten Tag, Praxis Dr. Beck, Marion Hauser am Apparat. Herr Holstein, ich möchte Sie an die Impfung Ihres kleinen Sohnes Alexander erinnern. Dr. Beck kann dann auch gleich die Kontrolluntersuchungen machen. Kommen Sie einfach zu unseren Sprechzeiten vorbei. Montags bis donnerstags von 8 bis 16 Uhr. Freitags ist unsere Praxis bis 12:30 Uhr geöffnet. Bitte vergessen Sie den Impfpass von Alexander nicht. Auf Wiederhören. Nummer 4. Guten Tag, hier spricht Markus Neuner von der Autowerkstatt Friedrich. Herr Lee, Ihr Auto ist fertig. Sie können es morgen früh ab 8 Uhr abholen. Die Bremsen hinten waren kaputt und die Batterie mussten wir auch austauschen. Außerdem haben wir neue Glühbirnen eingebaut und das Motoröl gewechselt. Die Reparaturen kosten ca. 400 Euro. Vielen Dank. Ende von Teil 1. Hören Teil 2. Sie hören 5 Ansagen aus dem Radio. Zu jeder Ansage gibt es eine Aufgabe. Welche Lösung A, B oder C passt am besten? Markieren Sie Ihre Lösungen für die Aufgaben 5 bis 9 auf dem Antwortbogen. Nummer 5. Liebe Hörer, es ist 7:15 und Zeit für unseren Blick in die Sterne. Hier ist Ihr Horoskop für Montag, den 6. April. Fische. Sie hatten in letzter Zeit viel Stress. Ein Kurzurlaub würde Ihnen gut tun. Stier. Ihr Partner braucht Ihre Hilfe. Lassen Sie ihn nicht im Regen stehen. Zwillinge. Sind Sie in Ihrem Beruf unzufrieden? Ihr Traumjob wartet schon. Löwe. Sollten Sie im Moment... Nummer 6. Hier noch eine Kurzmeldung der Deutschen Bahn. Auf der Strecke zwischen Mannheim und Hockenheim werden am kommenden Wochenende Bauarbeiten durchgeführt.
Die Regionalbahnen zwischen Mannheim und Hockenheim fahren deshalb am Samstag und Sonntag nicht. Stattdessen gibt es eine Busverbindung. Die Busse fahren alle 30 Minuten. Aktuelle Informationen zum Fahrplan finden Sie an den Serviceschaltern der Deutschen Bahn und im Internet. Nummer 7. Willkommen zu einer neuen Runde unseres beliebten Gewinnspiels Deutschland Tour. Gewinnen Sie diese Woche eine Kurzreise nach Dresden. Lassen Sie sich in einem 4-Sterne-Hotel verwöhnen und lernen Sie die wunderschöne Stadt Dresden kennen. Wenn Sie mitspielen möchten, rufen Sie uns an und beantworten Sie unsere Gewinnfrage. Die Telefonnummer sage ich Ihnen nach einer kurzen Werbepause. Nummer 8. Und hier ist Tobias Steiner mit den Verkehrsmeldungen. Auf der A8 zwischen Ulm und München werden 12 Kilometer Stau gemeldet. Unfall auf der A7 zwischen Kempten und Ulm, 6 Kilometer Stau. Und soeben berichtet uns die Polizei, dass ihnen auf der A96 zwischen Lindau und Ottobeuren ein Falschfahrer entgegenkommt. Bitte fahren Sie äußerst rechts und überholen Sie nicht. Wir melden uns, wenn die Gefahr vorbei ist. Nummer 9. Und nun zum Wetter. Am Freitag regnet es im Osten und im Süden Deutschlands. Im Flachland geht der Regen in Schneeregen über. Dazu kommt ein starker Wind. Im Westen scheint überwiegend die Sonne. Dort ist es mit 5 Grad auch am wärmsten. In den übrigen Teilen Deutschlands liegen die Temperaturen zwischen 0 und 3 Grad. Nachts gehen die Temperaturen auf -4 Grad zurück. Die Aussichten fürs Wochenende: windig und kalt. Ende von Teil 2. Hören Teil 3. Sie hören 4 Gespräche. Zu jedem Gespräch gibt es 2 Aufgaben. Entscheiden Sie bei jedem Gespräch, ob die Aussage dazu richtig oder falsch ist und welche Antwort A, B oder C am besten passt. Markieren Sie Ihre Lösungen für die Aufgaben 10 bis 17 auf dem Antwortbogen. Beispiel: Guten Tag, Herr Becker. Ich bin Melanie Erdmann, die Personalmanagerin von Meistertech. Guten Tag, Frau Erdmann. Erzählen Sie mir doch mal, was Sie über unseren Betrieb so wissen. Sie sind der größte Elektronikhändler in Süddeutschland und haben über 5000 Mitarbeiter. In den nächsten Jahren wollen Sie 4 weitere Elektrogeschäfte eröffnen. Als Elektrikermeister würde ich sicher gut in Ihr Team passen. Sie haben sicher gut über unsere Firma informiert. Wann haben Sie denn Ihre Meisterprüfung gemacht?
Vor 3 Jahren. Danach habe ich bei Elektrobusch gearbeitet. Aber leider wird die Firma im Sommer schließen. Sie könnten also im August schon bei uns anfangen? Ja, das geht. Meine Firma schließt am 30. Juni. Sie wissen, dass wir ein neues Geschäft in Stuttgart eröffnen. Können Sie sich vorstellen, umzuziehen? Natürlich. Im Juli könnte ich mir dann eine Wohnung in Stuttgart suchen. Nummer 10 und 11. Guten Tag, Frau Samsonow. Ich habe Sie und Ihren Mann ja schon lange nicht mehr gesehen. Wie geht es Ihnen? Hallo, Herr Jansen. Danke, es geht uns ganz gut. Wir arbeiten nur beide sehr viel. Mein Mann ist auf Montage im Ausland. Auf Montage? Wo denn? In Norwegen. Seine Firma baut dort neue Gasrohre. Eigentlich wollte ich Ihren Mann etwas fragen, aber vielleicht können Sie mir auch helfen. Um was geht es denn? Meine Familie und ich fahren nächste Woche in Urlaub. Könnten Sie vielleicht in dieser Zeit unsere Katzen füttern? Ja, das mache ich gern. Wie oft soll ich die Katzen denn füttern? 2-mal am Tag? Ja, Sie bekommen morgens und abends eine Dose Futter und frisches Wasser. Das ist schon alles. Kein Problem. Vielen Dank. Ich gebe Ihnen dann morgen unseren Schlüssel. Nummer 12 und 13. Guten Tag, Frau Bayer. Haben Sie die Wohnung gut gefunden? Guten Tag, Herr Steiner. Ja, ohne Probleme. Schön. Dann gehen wir mal rein. So. Das ist der große Flur. Oh ja, hier ist wirklich viel Platz. Und hier rechts ist gleich das Wohnzimmer. Mit Blick auf den Rhein. Oh, das ist schön. Das Zimmer ist hell und freundlich und der Ausblick auf den Rhein ist natürlich toll. Direkt gegenüber ist die Küche. Die muss allerdings renoviert werden. Stimmt. Die Tapeten sind schon alt und der Fußboden ist auch nicht mehr schön. Das Schlafzimmer ist hier. Und gleich daneben ist das Bad. Ach ja, ganz modern. Ja, die Fliesen sind fast neu und die Badewanne auch. Na, was sagen Sie? Die Wohnung gefällt mir gut. Sie soll 550 Euro kosten, richtig? Ja, 550 Euro kalt. Dazu kommen noch die Nebenkosten. Gut, ich bespreche das mit meinem Mann und rufe Sie morgen an. Nummer 14 und 15. Melnick? Guten Tag, Frau Melnick. Hier ist Michael Peters, der Klassenlehrer Ihrer Tochter Hanna. Ach ja, guten Tag, Herr Peters. Hat Hanna ein Problem in der Schule? Nein, nein, überhaupt nicht. Ich rufe an, weil Sie gestern nicht beim Elternabend waren. Und da wollte ich... Gestern war Elternabend? Das wusste ich ja gar nicht. Hanna hat nichts gesagt. Ich habe den Kindern letzte Woche eine Einladung für die Eltern mitgegeben. Ich habe keine Einladung bekommen. Vielleicht hat Hanna vergessen, sie mir zu geben. Ist nicht so schlimm, Frau Melnick. Ich rufe an, weil wir in 4 Wochen Frühlingsfest haben.
Und ich wollte Sie fragen, ob Sie einen Kuchen backen würden. Oh, ich kann leider nicht gut backen und auch nicht kochen. Helfen möchte ich aber schon. Kann ich etwas anderes machen? Ja, es gibt genug zu tun. Möchten Sie vielleicht die Getränke verkaufen? Ja, das mache ich gern. Prima. Danke, Frau Melnick. Dann sehen wir uns beim Frühlingsfest. Ja, bis dann, Herr Peters. Auf Wiederhören. Nummer 16 und 17. Guten Tag. Guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Ich hätte gerne etwas gegen meine Erkältung. Was nimmt man denn da so? Da gibt es verschiedene Medikamente. Haben Sie auch Fieber? Nein, Fieber habe ich nicht, aber Kopfschmerzen. Dann empfehle ich Ihnen diese Schmerztabletten mit Vitamin C. Haben Sie auch was gegen Husten? Ja, natürlich. Hier, diesen Hustensaft. Davon nehmen Sie bitte 3-mal täglich 20 Tropfen. Immer vor dem Essen. Kann ich den Hustensaft auch meinem Sohn geben? Er ist nämlich auch erkältet. Wie alt ist denn Ihr Sohn? Er ist 8. Nein, Kinder unter 12 Jahren dürfen diesen Hustensaft nicht einnehmen. Ich gebe Ihnen einen anderen. Hier. Kinder ab 6 Jahre nehmen davon 2-mal täglich 10 Tropfen. Wenn der Husten nach 3 Tagen nicht besser wird, gehen Sie mit Ihrem Sohn aber bitte zum Arzt, ja? Ja, vielen Dank. Das ist dann alles. Dann bekomme ich bitte 18,50 €. Hier, bitte, 20 Euro. Und 1,50 € zurück. Auf Wiedersehen. Und gute Besserung. Auf Wiedersehen. Ende von Teil 3. Hören Teil 4. Sie hören Aussagen zu einem Thema. Welcher der Sätze A bis F passt zu den Aussagen 18 bis 20? Markieren Sie Ihre Lösungen für die Aufgaben 18 bis 20 auf dem Antwortbogen. Lesen Sie jetzt die Sätze A bis F. Dazu haben Sie 1 Minute Zeit. Danach hören Sie die Aussagen. Den ganzen Tag Schule. Das soll für alle Grundschüler in Deutschland zur Pflicht werden. Wir haben für Sie eine Umfrage gemacht. Sollen Kinder in eine ganztägige Grundschule gehen? Was sind die Vorteile? Was sind die Nachteile? Hören Sie nun einige Aussagen. Beispiel. Ich glaube, die Kinder von heute haben gar keine richtige Kindheit mehr.
Sie sollen immer nur lernen, lernen, lernen. Früher waren die Kinder nur bis mittags in der Schule. Nachmittags haben sie Hausaufgaben gemacht. Und dann sind sie zu anderen Kindern aus der Nachbarschaft gegangen. Sie haben draußen Fußball gespielt oder sind zum Schwimmen gegangen. Das ist für Kinder sehr wichtig. Wenn sie aber den ganzen Tag in der Schule sind, haben sie zum Spielen gar keine Zeit mehr. Nummer 18. Meine Tochter Trixie ist 7 Jahre alt und geht in die Grundschule, eine Ganztagsschule. Wir haben uns extra dafür entschieden, weil die Kinder nachmittags viele Möglichkeiten haben. Sie machen Musik oder tanzen, kochen zusammen, malen oder basteln. Stellen Sie sich mal vor, wie viel Geld ich dafür monatlich an verschiedene Vereine bezahlen müsste. Außerdem geht Trixie gerne in diese Schule, weil sie dort viele Freundinnen hat. Und weil die Lehrer auch sehr nett sind. Nummer 19. Wissen Sie, ich finde eine Ganztagsschule gar nicht schlecht. Meine Frau und ich, wir müssen den ganzen Tag arbeiten. Und wenn wir abends nach Hause kommen, dann müssen wir uns noch um die Hausaufgaben von Andreas kümmern. Ich kann Ihnen sagen, das ist manchmal schon ganz schön anstrengend. Man hat abends einfach keinen Kopf mehr dafür. Ich habe gehört, dass die Kinder in der Ganztagsschule nachmittags mit den Lehrern zusammen ihre Hausaufgaben machen. Das ist doch super. Dann sehen die Lehrer sofort, wenn ein Kind Probleme im Rechnen oder Schreiben hat. Nummer 20. Naja, ich weiß nicht, ob ich bei Ihrer Umfrage mitmachen soll. Ich habe nämlich keine Kinder. Aber der Sohn meiner Schwester, der ist 9 Jahre alt und sitzt den ganzen Tag vor dem Computer. Er hat keine anderen Hobbys. Den ganzen Tag spielt er irgendwelche Computerspiele. Oder er sitzt dann vorm Fernseher. Für ihn wäre eine Ganztagsschule bestimmt gut. Da wäre er nachmittags nicht alleine und er könnte sinnvolle Sachen machen. Sport vielleicht oder ein Musikinstrument lernen. Ende des Subtests hören. तो hören आपको कैसी लगी? क्या मुश्किल लगी कि आसान? आप इसके lösungen चेक कर लें। जो कि ये रहे, आप वीडियो पॉज करके इनको चेक कर सकते हैं और हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें कि आपके कितने मार्क्स आए 20 में से। अब हम इस एग्ज़ाम के लेसन को करने लगे हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसको आप खुद से करें तो मैंने लिंक दे दिया है इस एग्ज़ाम का, जो कि टेल्क की वेबसाइट से लिया गया है। उसको खुद से करके आप चेक कर सकते हैं कि आपके कितने नंबर आते हैं और कितने नहीं। और उसके बाद आप ये जो अभी हम डिस्कस आराम से डिटेल से करेंगे, इसको चेक कर सकते हैं। जो भी मिस्टेक्स हुई हैं उन पार्ट्स को आप देख सकते हैं कि क्या वजह हुई कि आपकी वो मिस्टेक्स हुई। इसमें लेसन के 5 पार्ट्स होते हैं, जिसके लिए टोटल टाइम हमें दिया जाता है 45 मिनूटन का, और इसके टोटल 25 नंबर होते हैं। Teil 1 में हमें दिया गया है Sie sind beim Bürgerbüro Ihrer Stadtverwaltung। आप कहाँ हैं? रिहायशियों के दफ्तर में, जो कि आपकी सिटी एडमिन का या सिटी म्यूनसिपैलिटी का दफ्तर है, वहाँ पर हैं आप। Lesen Sie die Aufgaben 21 bis 25 und den Wegweiser। कि आप ये टास्क पढ़ें और उसके बाद रास्ता डिस्क्राइब करने वाला जो बोर्ड है उसको पढ़ें।
In welches Zimmer gehen Sie? A, B oder C? Markieren Sie Ihre Lösungen für die Aufgaben 21 bis 25 auf dem Antwortbogen. अब हम टास्क्स देख लेते हैं। ये बताने के लिए कि इस टास्क को किस तरह से सॉल्व करना है, एक हमें बाइस्पील करके दिखाई गई है जो कि आप पढ़ सकते हैं। Sie wollen heiraten. Wohin gehen Sie? आप चाहते हैं शादी करना, कहाँ जाएंगे आप? अच्छा, इसको शॉर्टली आप ऐसे कर सकते हो इस टास्क को कि जो कमरे दिए हों उसमें फटाफट जाके चेक कर लें कि शादी से रिलेटेड कोई बात हो रही है कि नहीं। अगर हो रही हुई तो उसको मार्क कर दीजिएगा, अगर इन दोनों में से ना हुई तो आप से पे मार्क कर सकते हैं। 22 है। Sie wollen sich beim Chef des Bürgerbüros über etwas beschweren. आप चाहते हैं हेड जो बॉस है इस रिहायशियों के दफ्तर का, उससे किसी चीज़ पर शिकायत करना। sich über etwas beschweren, किसी चीज़ पर कंप्लेन करना इसका मतलब होता है। और यहाँ हमें नज़र आ रहा है कि जब दो नाउन्स इकट्ठे आएँ तो वो गेनेटिव होता है जो कि पोजेशन को शो करता है। 23 Sie haben gestern Ihr Handy verloren und hoffen, dass es jemand abgegeben hat. आपका मोबाइल कल गुम हो गया है और आप उम्मीद कर रहे हैं कि किसी ने उसको दे दिया हो। 24 Sie sind umgezogen und möchten Ihre neue Adresse melden. आप शिफ्ट कर चुके हैं और चाहते हैं अपना नया एड्रेस, मेल्डन कहते हैं अनाउंस करना, नोटिफाई करना, बता देना, तो नया एड्रेस आप अपना बताना चाहते हैं। 25 है। Sie möchten einen Anwohnerparkausweis beantragen. आप एप्लीकेशन अप्लाई करना चाहते हैं किस चीज़ के लिए? रिहायशियों के पार्किंग के आईडी कार्ड के लिए। जब किसी एरिया में कोई बंदा रहता हो तो कुछ कुछ बिल्डिंग्स में ये बताया जाता है कि आपको हाउसवाइस चाहिए होता है वहाँ पर गाड़ी को पार्क करने के लिए, तो आपको ये चाहिए। अब हम बारी बारी देख लेते हैं वेगवाइजा को, जो कि बर्गर ब्यूरो का दिया गया है डिफरेंट कमरों के नंबरों के साथ। उनके क्या क्या टास्क हैं ये हमें बताया जा रहा है और यहाँ पर लिस्ट होगी मिटाबाइटा की, जो लोग उस कमरे में काम करते हैं। इनको देख लेते हैं कि इनमें क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। तो सिमा 213 में क्या चीज़ें हैं? वोनगेल्ड रहने के जो पैसे हैं इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलेगी। बेहिंडरटन आउसवाइसे, बेहिंडरटे, बेहिंडरटन उसका जमा है। ये कहते हैं उन लोगों को जो कि खुद से चल फिर ना सकें, हैंडीकैप्स को। तो उनके आईडी कार्ड्स। Seniorenbetreuung, Senioren कहते हैं सीनियर्स को, जो बड़े लोग होते हैं एल्डरली, उनका ख्याल रखने की सर्विस है। Gesundheitsprävention के सेहत से रिलेटेड जो रोकथाम है उससे मालूमात मिलेगी आपको। Gesundheitsberatung सेहत के बारे में भी आपको मालूमात, काउंसलिंग करी जाएगी, कंसल्टेशन कहते हैं बेराटुंग को। उसके बाद है Selbsthilfegruppen। Selbsthilfe लफ्ज़ को देखकर पता चल जाता है कि खुद की मदद, तो खुद की मदद करने वाले ग्रुप्स के बारे में भी यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो जैसे कि हमने यहाँ देखा कि इससे रिलेटेड हमारे पास कोई भी टास्क नहीं थी, ऐसा ही इसके लिए भी है। लेकिन सुमा 212 में हमें क्या सर्विसेज मिल रही हैं? फ्राउएनब्यूरो, औरतों का ऑफिस, Tagesmütter oder Tagesväter, ये वो लोग होते हैं जो कि बच्चों का ध्यान रखते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं। वैसे तो लफ्ज़ी मतलब देखा जाए तो दिन की माँ या माएँ यहाँ पे प्लूरल लिखा हुआ है और दिन के बाप यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन ये वो लोग होते हैं जो कि बच्चों को लुक आफ्टर करने की सर्विस देते हैं। उसके बाद है Ganztagsbetreuung, पूरे दिन का ध्यान रखना, अगेन ये बच्चों की बात हो रही है। फिर है Kindergarten Anmeldung के बच्चों का जो किंडरगार्टन होता है उसकी रजिस्ट्रेशन करने की यहाँ पर सर्विस मिलेगी।
Kostenübernahme किस चीज़ के मिलेंगे? कीटा, क्रिपे, कराबलस्टूबे, ये सारी जो सर्विसेज हैं डे केयर और छोटे बच्चों की, जहाँ पे भी आपने दाखिले कराने हैं उनके डे केयर सेंटर में, चाइल्ड केयर सेंटर में, उनसे रिलेटेड ये सारी चीज़ें हैं। तो उसकी जो कॉस्ट है उसको ओवरटेक करेगी आपकी स्टाडटverwaltung, हो सकता है उसके बारे में यहाँ इन्फो मिलेगी। और यहाँ पर आपको एल्टन गेल्ट के बारे में भी जो एप्लीकेशंस करनी होती हैं उनके बारे में भी मालूमात मिलेंगी। एल्टन गेल्ट कहते हैं जब बच्चा पैदा हो तो वालिद या वालदा छुट्टी लेती हैं और उसके पैसे मिलते हैं, ये उसके बारे में यहाँ पर हमें मालूमात दी जा रही है। और अगर आपको याद हो तो बाइशपील में इसकी बात की जा रही थी। Zimmer 211 में Ausstellung von Geburts- und Sterbeurkunden, यानी Ausstellung वैसे तो एग्जीबिशन को हम कहते थे, लेकिन Ausstellung का एक और मतलब होता है इजरा करना, जारी करना, इशू करना। तो किस चीज़ का इशू यहाँ पर हो रहा है? पैदाइश के सर्टिफिकेट्स और डेथ के सर्टिफिकेट्स का। Namensänderungen, नाम को चेंज करने की यहाँ पर सर्विस है। उसके बाद है Vaterschaftsanerkennungen, फाटाशाफ्ट कहते हैं फादरहुड को। तो वल्दियत का एतराफ़ अगर आप करना चाहें तो वो यहाँ पर जाके आप बताएंगे कि ये बच्चा पैदा हुआ है और मैं इसका बाप हूँ। उसके साथ साथ Lohnsteuerkartenänderung, Lohnsteuerkarte होता है इनकम टैक्स कार्ड, तो उसको अगर आपने चेंज कराना है तो भी आप इस कमरे में जाकर ये सर्विसेज करवाएंगे। Zimmer 210 में है Anträge zur Eheschließung, Anträge दरख्वास्तें, एप्लीकेशंस, किसकी? शादी की, वो यहाँ पर की जाती हैं। Durchführung von Eheschließungen, ये इसी का जमा यहाँ पर लगा हुआ है। तो Durchführung कहते हैं मुकम्मल कर लेना, हासिल कर लेना। तो सर्टिफिकेट्स शादियों के जो हैं उसके बारे में यहाँ पर चीज़ें और कार्रवाई की जाती है। उसके बाद है eingetragene Lebenspartnerschaften, Lebenspartnerschaften कहते हैं लाइफ पार्टनरशिप्स, eingetragene होते हैं रजिस्टर्ड। तो रजिस्टर्ड जो बंदे साथ रह रहे हैं उनके बारे में यहाँ पर मालूमात मिलेगी कि हम यहाँ पे जाके अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं। उसके बाद है Ehefähigkeitszeugnisse, Zeugnisse कहते हैं सर्टिफिकेट्स को। तो ये वो सर्टिफिकेट्स होते हैं जो कि ज़ाहिर करें कि आप शादी की अहलियत रखते हैं, तो वो भी आप यहाँ पर इनका इजरा होता है। उसके बाद है Zusatzinformationen, इजाफ़ी मालूमातें, ये एडिशनल इंफॉर्मेशंस für Staatsangehörige der EU, इजाफ़ी मालूमात आपको मिलेगी उन रिहायशियों की जो कि यूरोपियन यूनियन में रहते हैं। तो 21 में आप शादी करना चाहते थे तो आपने कहाँ जाना था? आपने Zimmer 210 में आपका ये काम होगा। Zimmer 115 में है An- und Abmeldung von Mülltonnen, अनमेल्डुंग जहाँ पे दिखे एप्लीकेशन के मतलब में लॉगिन करवाना किसी चीज़ के लिए, और अब मेल्डुंग उसका उलट है लॉग आउट करवाना, किसी चीज़ को छोड़ने की एप्लीकेशन दे देना। तो ये दोनों चीज़ें मुल्टोनन के लिए, मुल्टोनन जो कूड़ेदान है बड़े बड़े बिल्डिंगों के बाहर पड़े होते हैं उनकी। उसके बाद है स्पेयरमुल अनमेल्डुंग। अब मिसाल के तौर पे आप एक घर छोड़ के जाते हैं तो अपना जो फर्नीचर का काट कबाड़ है वो बाहर रख जाएं, तो उसके लिए भी अनमेल्डुंग करवानी होती है, एप्लीकेशन देना होता है कि हम इस बिल्डिंग से इस तारीख को बाहर सामान रख के जा रहे हैं, तो प्लीज़ इस कूड़े को उठा कर ले जाएं। तो ये होगी स्पेयरमुल अनमेल्डुंग। हाली स्पेयरमुल वो कूड़ा होता है जो बहुत बड़ा कूड़ा होता है, जैसे फर्नीचर के टुकड़े हो गए, आपके बेड के टुकड़े, बाकी सारी चीज़ें, उसको हम स्पेयरमुल कहते हैं। उसके बाद है ग्रुंट अपगाबन, अपगाबे कहते हैं फ़ीस को, तो बुनियादी कुछ फ़ीसें हैं उसके बारे में भी यहाँ पे मालूमात मिलेगी जो कंट्रीब्यूशन और ड्यूज़ होते हैं। क्लब ज़ाउबरे स्टाट, साफ शहर का एक क्लब है, वो भी यहाँ पे मालूमात मिलेगी। और उसके बाद फिर से यही दो लफ्ज़ रिपीट हुए हैं, अनमेल्डुंग उन अबमेल्डुंग फॉन हुंडन, इनकी कुत्तों की रजिस्ट्रेशन और उसको हटाना। इसी तरह पाक आउसवाई से पार्किंग के जो आईडी कार्ड्स हैं वो भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। Zimmer 114 Migration, Integration, Einbürgerungen, माइग्रेशन, इंटीग्रेशन
और आइनबürgerung कहते हैं नेचुरलाइजेशन को, किसी एक मुल्क में जाके किसी दूसरे मुल्क का बंदा वहाँ के मुल्क की नेशनैलिटी ले ले तो उसको आइनबürgerung जो कि नेचुरलाइजेशन होता है उसको कहते हैं। उसकी यहाँ पर जमा यूज़ हुई है। EU-Führerschein यूरोपियन यूनियन का लाइसेंस, इंटरनेशनल Führerscheine इंटरनेशनल लाइसेंसेस जो गाड़ियों के होते हैं, ट्रकों के, और वीज़म फ्लिश्टिगे गेस्टे वो मेहमान जिनके लिए वीज़ा रिक्वायर्ड है, वीज़े के बगैर उनका किसी मुल्क में दाखिला नहीं हो सकता। इसके बारे में भी हमें सिमा 114 में मालूमात मिलेगी। 113 में Bücherei लाइब्रेरी, Leseförderungen कहते हैं पढ़ने को फ़रोग देने को, रीडिंग प्रमोशन, Fundsachen गुमी हुई चीज़ें, Städte पार्टनरशाफ्टन जो शहरों में आपके मुख्तलिफ शहरों में पार्टनरशिप्स बनती हैं उनके बारे में। आउस्टाउश प्रोग्राम में कहते हैं एक्सचेंज प्रोग्राम्स जो कि मुख्तलिफ स्कूलों यूनिवर्सिटियों के दरमियान या मुख्तलिफ कोई कारोबारी अगर आप एक्सचेंज प्रोग्राम्स करना चाहते हैं तो वो। और बर्गर इंगेजमेंट जो रिहायशियों हैं उनकी इंगेजमेंट, उनका बढ़ चढ़ कर किसी चीज़ों में हिस्सा लेने के बारे में सारी मालूमातें आपको यहाँ मिलेंगी। तो जो आपका मोबाइल खोया था वो 113 में आपको इसकी इन्फो मिलेगी क्योंकि यहाँ पर Fundsachen लगा है। अगर इसकी जगह Fundbüro भी होता तो वो भी इसी काम के लिए इस्तेमाल होता है। Fundbüro कहते हैं ऐसी जगह जहाँ पर लोगों की जो चीज़ें खो जाती हैं तो दूसरे लोग जिनको वो मिलती हैं वो उनको वहाँ पर जाके Fundbüro में दे देते हैं और जमा करवा देते हैं। तो Fundsachen, Fundbüro एक ही चीज़ को आप समझ सकते हैं। सिमा 112 Amtsleiter डिपार्टमेंट का हेड, Stadtentwicklung शहर का डेवलपमेंट, Bauaufsicht कहते हैं बावन से कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग कंट्रोल करना, ठीक है। Baugenehmigung कहते हैं कंस्ट्रक्शन की इजाज़त देना, Verkehrsplanung ट्रांसपोर्ट की ट्रैफिक की प्लानिंग करना, Gartenamt जो गार्डन्स होते हैं उनका डिपार्टमेंट, और फ्रीडहोफ्स फवाल्टुंग फ्रीडहोफ कहते हैं कब्रिस्तान को, तो ग्रेवयार्ड की एडमिन को हम ये कहेंगे जर्मन में। तो जो बॉस के साथ या हेड के साथ जाके हमने कंप्लेन करनी थी क्योंकि यहाँ पर Amtsleiter लिखा है तो हम 102 पे मार्क करेंगे। सिमा 111 में है Reisepässe und Personalausweise पासपोर्ट्स और आईडी कार्ड्स, Einwohnermeldeamt कहते हैं रिहायशियों का रजिस्ट्रेशन का दफ्तर डिपार्टमेंट, An, Ab und Ummeldungen Anmeldung और Abmeldung की हमने ऊपर बात की। Ummeldung होती है एक मेल्डुंग को चेंज कराकर दूसरी एप्लीकेशन दाखिल करना, उसको हम Ummeldung कहते हैं। Führungszeugnisse ये भी जमा लगा है, Zeugnis इसका वाहिद होता है, तो ये होते हैं सर्टिफिकेट्स ऑफ गुड कंडक्ट कि आप अच्छे शहरी हैं, आपने कोई बुरे काम या कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड आपका नहीं है, तो आप फिर Führungszeugnis से भी कुछ जॉब जो देते हैं हमें लोग कंपनीज वगैरह वो ये भी मांगती हैं कि आपका कंडक्ट ठीक है कि नहीं, रिकॉर्ड आपका साफ़ है कि नहीं। लोनस्टॉया कहते हैं, लोन्स स्टोया एस कनेक्टर है, ये होता है जी आपका टैक्स होता है स्टोया, तो पेमेंट का टैक्स कितने आप पैसे कमाते हैं और टैक्स कितना अदा करते हैं। गेव्याबे रजिस्टर कहते हैं, गेव्याबे कहते हैं एम्प्लॉयमेंट को, जो कारोबार आप करते हैं उसका जो इंडेक्स है, सारी तफसीलात यहाँ पर आपको मिलेंगी। गेव्याबे शाइन फिर से वही ट्रेड का सर्टिफिकेट जो आप लेते हैं कि आपने ये काम करना है तो उसका आपको शाइन भी मिल सकता है। और कंसेसियोनन कहते हैं कंसेशंस को, जो थोड़े बहुत पैसों की बचत की जा सके या कोई कंसेशंस वो भी आपको यहाँ पर मिलेंगी। तो यहाँ पर टास्क में था कि आप शिफ्ट कर रहे हैं और चाहते हैं नए एड्रेस को बताना शहर में जाकर, तो हमेशा जब भी आप एक जर्मन शहर से दूसरे जर्मन शहर में जाएं तो पिछले शहर से अपना रिकॉर्ड ख़त्म करके नए शहर के Anwohnermeldeamt में जाकर अपना रजिस्टर करवाते हैं नया पता, और उसके साथ साथ बाकी सभी चीज़ों के लिए आपका क्रांकन खासे हो गया, आपका एम्प्लॉय हो गया, जहाँ जहाँ आपने अपना पता दिया हुआ था उन सभी जगहों पर भी आपको चेंज करवाना पड़ता है। तो ये हमें 111 में जाना था।
तो जहाँ तक बात रही फुनवुनस्वांसिश की, तो आप चाहते थे रिहायशियों का एक पार्किंग करने का कार्ड बनवाना, तो वो आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा इन 2 कमरों में, क्योंकि वो 115 में था, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है। तो इसलिए आप से मार्क कर देंगे अंडरगे सिमा के दूसरा कमरा ना इन दोनों में नहीं है। Teil 2 में है Lesen Sie die Situationen 26 bis 30 und die Anzeigen A bis H. Finden Sie für jede Situation die passende Anzeige. ठीक हो गया, इश्तिहारात हम पढ़ने लगे हैं और हमारे पास 5 सिचुएशंस हैं, उन पर हम मैचिंग करेंगे डिफरेंट इश्तिहारों की, एड्स की। Markieren Sie Ihre Lösungen für die Aufgaben auf dem Antwortbogen. आंसरिंग शीट पर अपने आंसर्स लिखें, ये कहा जा रहा है für eine Aufgabe gibt es keine Lösung. एक टास्क के लिए कोई भी सल्यूशन नहीं है। Markieren Sie in diesem Fall ein X. तो उसके लिए हमें क्रॉस को मार्क करना होगा। 26. Sie möchten Ihren Vater zum Essen einladen. Ihr Vater liebt die asiatische Küche und kann nicht alleine laufen. आप चाहते हैं अपने अब्बा को खाने पे इनवाइट करना और उनको पसंद है एशियन कुजीन, एशिया का खाना, ठीक है, और वो अकेले खुद से नहीं चल फिर सकते। 27 है Für eine Hochzeitsfeier mit über 100 Gästen suchen Sie ein passendes Restaurant. एक शादी की तकरीब जिसमें 100 से ऊपर मेहमान होंगे, उसके लिए ढूंढ रहे हैं आप एक सूटेबल रेस्टोरेंट। 28. Sie möchten Ihren Geburtstag zu Hause feiern, aber das Essen nicht selbst kochen. Sie erwarten 12 Gäste. आप चाहते हैं अपनी सालगिरह घर पर मनाना, लेकिन खाना खुद से नहीं पकाना चाहते और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं 12 मेहमानों को। 29. Sie möchten mit Ihren Kindern 2 und 6 Jahre alt am Samstagabend essen gehen. आप चाहते हैं अपने बच्चों के साथ जिनकी उम्रें ये हैं, सैटरडे को शाम को खाने खाना जाना। Sie wollen im Freien sitzen, aber trotzdem bei Regen nicht nass werden. आप चाहते हैं खुले में बैठना, लेकिन उसके बावजूद बारिश में गीला होना नहीं चाहते। 30 है Sie haben Ihren Kindern versprochen, sie am Sonntag in ein Eiscafé zu einem großen Becher Eis einzuladen. आपने अपने बच्चों से वादा किया है कि सैटरडे को एक आइस कैफ़े में एक बड़े से आइस के कप का उस पर बुलाने का आपने उनसे वादा किया है, यानी उनको लेके जाने का। अच्छा, यहाँ पर आपको ये बात बताती चलूँ कि जब भी एड्स को आपने मैच करना हो तो हमेशा टास्क में जो ज़रूरी वर्ड्स होते हैं उसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं, ताकि वो आपको याद रहे कि इसमें आपने क्या चीज़ सर्च करनी है। अब हम एड्स देख लेते हैं। और यहाँ पर आपको एक टिप देती चलूँ कि चाहे किसी भी लेवल का आपका कोई भी लैंग्वेज एग्ज़ाम हो, कभी भी ये एक्सपेक्ट करके मत जाएं कि आपको सारे के सारे लफ्ज़ आते होंगे। जो लफ्ज़ आपको आते हों उन्हीं में से आपने आंसर्स को ढूंढना होता है, और ये मेरे साथ भी हुआ था जब मैंने B1 का और C1 का एग्ज़ाम दिया था। तो एड्स में से पहला है Gasthaus zur Tafelrunde, das Restaurant für Ihre Festlichkeit। ये रेस्टोरेंट है आपकी सेलिब्रेशंस के लिए। Unser erlebnisreiches Ambiente im mittelalterlichen Flair bietet Ihnen und Ihren Gästen den idealen Ort für Festlichkeiten, Firmen- und Familienfeiern sowie Jubiläen und Tagungen। काफ़ी सारे मुश्किल लफ्ज़ हैं इसमें और ज़रूरी नहीं कि आपको सभी के मतलब आते हों। तो क्या है जी कि कलरफुल एक्साइटिंग इवेंट से भरपूर माहौल है, मिडिल एजेस की कोई बात की गई है कि उस तरह का स्टाइल है, ऑफ़र करता है आपको और आपके मेहमानों को एक आइडियल जगह सेलिब्रेशंस के लिए, खुशियाँ मनाने के लिए, चाहे वो कंपनीज़ की हो या फैमिली की खुशियाँ हों, जैसे कि सालगिरहें हैं, एनिवर्सरीज़, और ठागुंगन कहते हैं मीटिंग्स को, कॉन्फ्रेंसेस को। उसके बाद कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। Deutsche
internationale sowie fleischlose Spezialitäten, जर्मन इंटरनेशनल और इसके साथ साथ गोश्त से माइनस फ्लाइशलोस यानी गोश्त ना हो उसमें, उस तरह के भी खाने की स्पेशलिटीज़ हैं। और कुलिनारिशा ज़ेज़ों कैलेंडर, खाने पीने से रिलेटेड मौसमी कैलेंडर होता है, जिस मौसम में जो सब्जियां फल हों उनसे रिलेटेड आपको इस रेस्टोरेंट में खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं। कुछ और पॉइंट्स भी हैं जैसे कि ज़ुनियोगन und Kinderkarte, बड़े लोगों के जो एजिड होते हैं और बच्चों के कार्ड्स, खाल्टे und warme बुफ़ी वारियात्सियोनन, यानी बुफ़े की वेरिएशंस हैं ठंडे और गर्म खानों की। हॉकसाइड्स प्लाना, ये तो लफ्ज़ से पता चल रहा है शादी की प्लानिंग का। 150 Plätze im Restaurant, 150 सीट्स हैं इस रेस्टोरेंट में। gebührenfrei Tiefgarage, gebührenfrei फीस माफ़ है, फ़ीस फ्री यानी फ्री जो है ना बेसमेंट में गैराज है गाड़ियों को पार्क करने के लिए। Tiefgarage वो होता है जो कि बेसमेंट में हो। geöffnet täglich ab 16 Uhr Sonntag या Sonntags कह लें क्योंकि जमा में है, und Feiertags होता है जी अब 11 Uhr 30 और ये टेल है और ये उनका वेबसाइट है। तो Aufgabe 27 जिसमें शादी की एक तकरीब के लिए 100 से ऊपर मेहमानों के लिए आप ढूंढ रहे थे एक सूटेबल रेस्टोरेंट, ये इस पे बिल्कुल फिट बैठता है क्योंकि वो हमारी फ़ामिलियन फाया होती है, फेस्टलिशकाइट खुशियाँ मनाने का त्यौहार होता है और इसमें 150 जगह हैं, यानी ठीक ठाक बड़ा ये रेस्टोरेंट है, इसमें शादी की जा सकती है। बे है बुफेस für ihre Feier, बुफ़े आपकी सेलिब्रेशन के लिए, खुशियाँ मनाने के लिए, पार्टी के लिए। अब 10 Personen zum Beispiel, 10 लोगों से ऑनवर्ड ये ऑफ़र है। जैसे कि अब यहाँ पर खाने पीने की चीज़ें हैं, आपको पता है कि हर एक कल्चर की, वतन की अपनी अपनी होती हैं, तो इनको अगर आप ना भी जानते हो तो कोई मसला नहीं है। तो ये डिफरेंट जर्मनी के खाने के नाम लिखे हुए हैं, खानों के नाम ना। उसके बाद है जी कुछ और भी चीज़ें हैं जैसे कि Gemüseplatte, सब्जियों की प्लेट ट्रे, frische Salate, ताज़े सैलड्स। Preis pro Person nur 11,90 €। Sind Sie an weiteren Buffet-Vorschlägen interessiert? क्या आप फर्दर कोई बुफ़े के मशवरे देना चाहते हैं, उनमें दिलचस्पी रखते हैं? Dann fordern Sie gleich unseren Prospekt an. अनफॉर्डन कहते हैं डिमांड करना, रिक्वेस्ट करना, पूछना। तो फिर आप हमसे फ़ौरन हमारे प्रोस्पेक्ट के बारे में पूछ सकते हैं, यानी इन्होंने उसमें प्रिंट कराया होगा क्या क्या ये चीज़ें सर्व करते हैं इस बुफ़े में। उसके बाद है पार्टी सर्विस और आगे नाम है, नंबर है और बाकी सारी चीज़ें हैं। Wir bringen Ihnen alle Speisen nach Hause. आहा, ये इम्पॉर्टेंट लाइन है कि हम हर चीज़, हर खाने की चीज़ आपके घर की तरफ लाते हैं। तो ये आई थिंक एक था ऐसा कोई टास्क जिसमें इस तरह की कोई रिक्वायरमेंट थी, देख लेते हैं। तो इस टास्क में 2 जगहों पर ऐसे पॉइंट्स थे जो कि मैच कर रहे थे, जैसे कि घर पर हम लाते हैं खाने की चीज़ें 10 लोगों से ऑनवर्ड अगर हो तभी आपको फ़ायदा है इस बुफ़े का, और हम अपनी बर्थडे घर पर मनाना चाहते थे और 12 मेहमानों को बुलाने लगे थे, तो इसलिए ये ऐड हमारे लिए परफेक्ट है। इस ऐड के साथ कोई भी टास्क मैच नहीं करती थी। इसको यहाँ पॉज करके आप खुद से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि मैंने इसके बारे में भी बताना शुरू किया तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। और इसी तरह इस अनसाइगे के लिए भी कोई भी Aufgabe नहीं थी। ए में है Das älteste Apfelweinlokal in der Stadt, सबसे पुराना एप्पल वाइन बनाने वाली जगह शहर में। Eigene Apfelwein und Apfelsaft Herstellung, Herstellung आपको जहाँ भी दिखे उसका मतलब है प्रोडक्शन, पैदावार। तो खुद की एप्पल वाइन की और एप्पल जूस की पैदावार प्रोडक्शन करती है ये कंपनी या ये जो जगह है। लोकाल कहते हैं रेस्टोरेंट को, पब को, जहाँ पे बैठ के पीना पिलाना हो, इस रेफरेंस में उसका मतलब है। तो टास्क में डिटेल्स लिखी हैं। Neben unseren 50 Plätzen im Lokal können wir Ihnen weitere 50 überdachte Plätze in unserem großen, begrünten Innenhof bieten.
कि रेस्टोरेंट के अंदर हमारे पास 50 सीटें हैं, वो हम ऑफ़र करते हैं आपको, और उसके साथ-साथ 50 सीटें जो कि छत उनका कवर्ड है, वो भी ऑफ़र करते हैं हमारे बड़े से ग्रीन, जो कहते हैं इननहोफ कहते हैं कोर्टयार्ड को ना, जैसे कि आपका आंगन होता है खुला-सा ना एरिया, इर्द-गिर्द आपकी अगर कुछ और जगह बनी हुई है तो इननहोफ में हम आपको ऑफ़र करते हैं। उसके बाद है जी, für unsere kleinen Gäste steht ein Kinderspielplatz zur Verfügung. zur Verfügung stehen मैंने भी आपकी तरह बेआइंस में सीखा था, इसका मतलब होता है मौजूद होना, अवेलेबल होना। तो हमारे छोटे मेहमानों के लिए मौजूद है खेलने की जगह। Unsere reichhaltige Speisekarte enthält auch spezielle Senioren und Junioren, अब ये पता नहीं यॉट होगा कि जे होगा, मैंने कंफर्म नहीं किया, बहरहाल अंगेबोट। तो हमारी एक रिच बहुत वैरायटी वाला जो हमारा कार्ड है मेन्यू का, उसमें हैं आपके लिए स्पेशल बड़ों के लिए और छोटों के लिए ऑफर्स, और ये उसकी टाइमिंग है täglich geöffnet von 17 bis 1 Uhr, Innenhof bis 23 Uhr। ठीक है, टाइम आपने नोट कर लिया और ये एड्रेस है। आप देखते हैं कि इससे रिलेटेड कौन सा aufgabe था। तो आप अपने बच्चों के साथ जाना चाहते थे सैटरडे की शाम को खाना खाने, और खुले में बैठना चाहते थे और बारिश में गीले भी नहीं होना चाहते थे, तो ये उबाटाख्टे प्लेट्से यानी कवर्ड छत जिनका कवर हो, उस तरह की जगह हैं लेकिन ग्रीनरी में, हरे इलाके में। तो ये टास्क इसके साथ मैच करता है। अच्छा, एफ है जी, chinesische und koreanische Köstlichkeiten। चाइनीज़ और कोरियन ऐसी चीज़ें जो बड़ी नायाब हैं, खाने में मज़ा आए जिनको। Ente, Huhn, Rindfleisch, Schweinefleisch, vegetarisch, बतख, चिकन, मीट यानी बीफ, ठीक है। उसके बाद पोर्क मीट और वेजिटेरियन। Sonntags bieten wir auch ein umfangreiches Buffet mit Vor- und Nachspeisen an। के संडेज़ को हम ऑफ़र करते हैं वही बहुत सारी वैरायटी वाला बुफ़े, जिसमें आपके फ़ोर-स्पाइज़े कहते हैं स्टार्टर को, एपेटाइज़र को, जिसमें खाने से पहले भी कुछ चीज़ें खिलाने को दी जाती हैं, और नाख़स्पाइज़े इसका उलट है, जो कि हम मीठी चीज़ को, स्वीट डिश को कहेंगे, तो वो हम ऑफ़र करते हैं। In zentraler Innenstadtlage mit eigenen Parkplätzen, के सेंट्रल शहर की जगह पर खुद की पार्किंग प्लेसेस हैं। behindertenfreundliche Zugänge zu allen Gästeräumen, तो जो हैं बंदे जो खुद से नहीं चल फिर सकते, जो डिसेबल्ड होते हैं, उनके फ्रेंडली एंट्रेंसेस हैं, यानी सारे कमरे जो मेहमानों के लिए सर्व किए करने के लिए दिए गए हैं, रखे गए हैं, उन सभी में उनसे फ्रेंडली एंट्री है। सुगेंगे एंट्रेंसेस हैं। Öffnungszeiten ये हैं और टाइम ये। तो ये जो 26 था कि आपके अब्बा को पसंद है एशियन किचन, आसियाtische Küche, और यहाँ पर chinesische und koreanische Küche हमें मिल रहा है, खाने पीने की चीज़ें इन दो मुल्कों की, और वो ख़ुद से नहीं चल फिर सकते, तो ये दोनों चीज़ें इसके साथ मैच करती हैं, तो इसका ये आंसर करेक्ट है। तो इन दोनों एड्स के लिए भी कोई भी aufgabe मैच नहीं करता, तो इससे आपको क्या पता चला कि आपने रियल लाइफ एग्ज़ाम में जल्दी जल्दी स्पीड मारनी है, ताकि कोई भी टास्क आप मिस ना करें, सभी को पढ़ के सही सही उसको गेस करके आंसर करें। तो इसके लिए बहुत सी प्रैक्टिस चाहिए होती है। और ये है जी वो aufgabe जिसके साथ कोई भी अनसाइगे मैच नहीं करता, तो आप इसको रियल एग्ज़ाम में भी क्रॉस के साथ मार्क करेंगे। Teil 3. Lesen Sie die 3 Texte. Zu jedem Text gibt es 2 Aufgaben. Entscheiden Sie bei jedem Text, ob die Aussage richtig oder falsch ist und welche Antwort A, B oder C am besten passt. Markieren Sie Ihre Lösungen für die Aufgaben 31 bis 36 auf dem Antwortbogen. तो जैसे कि मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि पहले अगर आप aufgaben पढ़ लें तो आपको ज़रा बेहतर आइडिया हो जाता है कि टेक्स्ट में से क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो 31 है, die KKB Krankenkasse bezahlt ihren Mitarbeitern einen Kurs im Fitnessclub,
कि ये जो Krankenkasse है हेल्थ इंश्योरेंस, ये पे करेगी अपने मेंबर्स के लिए एक कोर्स जो कि फिटनेस क्लब में हो रहा है। 32. Am Trainingsprogramm von Trainer Tom teilzunehmen, braucht man viel Zeit, muss man ins Internet gehen oder muss man sehr sportlich sein। कि ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ट्रेनर का नाम टॉम है, इसमें हिस्सा लेने के लिए इंसान को बहुत टाइम चाहिए होता है, इंसान को इंटरनेट पर जाना पड़ता है या फिर बहुत स्पॉटी होना पड़ता है। इसका टास्क को देखने के लिए हमें टेक्स्ट को पढ़ना पड़ेगा। ओके जी, टेक्स्ट है नया फिटनेस und Gesundheitsspezialist के नया फिटनेस और सेहत का स्पेशलिस्ट। फिटनेस ist der Schlüssel zu mehr Wohlbefinden कि फिटनेस चाबी है किसकी? हैरियत की, वेलबींग की, जो कि ज़्यादा हो। Weil der KKB Krankenkasse die Gesundheit ihrer Mitglieder wichtig ist, hat sie Trainer Tom engagiert। कि क्योंकि इस हेल्थ इंश्योरेंस की अपने मेंबर्स के लिए सेहत इनके लिए बहुत ज़रूरी है मेंबर्स की, तो उसके लिए उन्होंने ट्रेनर जो टॉम है उसके साथ मसरूफ़ किया है खुद को। Als echter Alleskönner für Fitness und Gesundheit hat ein abwechslungsreiches Trainingsprogramm zusammengestellt। तो एक हकीकी जो है ऑलराउंडर जो कि सब कुछ कर पाए सेहत के लिए, फिटनेस के लिए, उसने एक ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम इकट्ठा किया है, बनाया है, जो कि बहुत वैरायटी रखता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए। Von dem ab sofort jedes Mitglied profitieren kann। ये von dem का मतलब है कि इससे ना, यानी इससे किससे? ट्रेनिंग्स प्रोग्राम से। तो उससे अब sofort अभी से ही हर एक मेंबर फ़ायदा उठा सकता है। einen erkennbaren Trainingseffekt zu erhalten, एक ऐसा इफ़ेक्ट ट्रेनिंग का जो कि दिखे, ज़ाहिर हो, उसको हासिल करने के लिए spielen Regelmäßigkeit des Trainings, Kraft, Beweglichkeit eine große Rolle। तो इस चीज़ को हासिल करने के लिए आपको क्या करना है, यानी कि आपको वाज़ह फ़र्क नज़र आए जो आप ये ट्रेनिंग कर रहे हैं, इसमें क्या चीज़ अहम रोल, अहम किरदार अदा करेगी, वो है यहाँ पे फ्रेज़ लगा है eine große Rolle spielen, एक किरदार अदा करना, टू प्ले अ बिग रोल। रेगलमेसिशकाइट कि आप मतवातर रोज़ाना ये चीज़ करें, रेगुलरली करें ट्रेनिंग को। क्राफ्ट आपकी हिम्मत और ये आपकी हरकत, ये तीन चीज़ें आपका बहुत बड़ा रोल, किरदार अदा करेंगी इस ट्रेनिंग के इफ़ेक्ट को देखने के लिए। उसके बाद है जी Die ausgewählten Übungen sind einfach zu lernen कि जो चूज़ की गई एक्सरसाइजेस हैं वो आसान है सीखना। kosten kaum Zeit, कम ही टाइम लगता है उन पर। und lassen sich fast überall durchführen, और उनको कहीं पर भी überall ओवरऑल किया जा सकता है। So werden selbst untrainierte Bewegungsmuskeln nach wenigen Trainingseinheiten feststellen, और इस तरह से फिर खुद से जो अनट्रेंड बेवेगुंग्समुफल कहते हैं काउच पोटैटो को, जो कि बैठे ही रहते हैं कुर्सियों पर या सोफ़ों पर, उनको कुछ ही ट्रेनिंग के यूनिट्स के बाद वो जज कर पाएंगे, अंदाज़ा लगा सकेंगे। Das sich kleine Sportübungen lohnen, sich lohnen कहते हैं टू बी वर्थ इट, कि ये जो छोटी छोटी स्पोर्ट एक्सरसाइजेज हैं इनको करना बहुत फ़ायदेमंद देगा, और ये करेंगी अपने आप को, कहते हैं ना sich lohnen टू बी वर्थ इट, तो वो होंगी। Und das Schöne ist, और ख़ूबसूरत क्या चीज़ है, अच्छी क्या चीज़ है, man muss weder einen Fitnessclub noch eine Sporthalle aufsuchen। और अच्छी चीज़ ये है कि इंसान को ना तो फिटनेस क्लब में और ना ही स्पोर्ट हॉल ढूंढना पड़ेगा इन एक्सरसाइजेस को करने के लिए। यहाँ पर कनेक्टिंग वर्ड्स लगे हैं वेडा और नॉख, ना ही और ना के मतलब में, नाइदर नॉर। Alle Übungen sind auf der Internetseite der KKB। सारी एक्सरसाइजेज मौजूद हैं इंटरनेट पेज जो इस हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का है। Krankenkasse ausführlich mit Bildern beschrieben। उनको तफसीलन तस्वीरों के साथ
तफसील से डिस्क्राइब करके बताया गया है। und können durch Eingabe der Mitgliedsnummer aufgerufen werden। और उनको किस तरह से हासिल किया जा सकता है इन चीज़ों को, जो कि आपका मेंबरशिप का नंबर होता है, उसको आपने एंटर करना है और वो चीज़ें आपको सारी तस्वीरें और सारी तफसीलात उन एक्सरसाइजेस की मिल जाएंगी। तो टेक्स्ट सारा पढ़ने के बाद हमें पता चला कि ऐसा कोई भी कोर्स नहीं है जो कि फ़िटनेस क्लब में हमने जाकर देना है और उसके पैसे हमें ये Krankenkasse पे करेगा, तो इसलिए 31 फाल्श है। और जहाँ तक बात रही कि ट्रेनर टॉम का ये जो ट्रेनिंग्स प्रोग्राम है, इसमें हिस्सा लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस लाइन से आपको सभी पता चल जाता है कि KKB के इंटरनेट साइट पे हमने जाना है। तो muss man ins Internet gehen। 33 है Kinder sollen immer den kürzesten Weg zur Schule nehmen, कि बच्चों को हमेशा जो छोटा तरीन रास्ता है स्कूल की तरफ का वो लेना चाहिए। Eltern sollen den ganzen Weg zur Schule langsam fahren, पेरेंट्स को पूरा रास्ता स्कूल की तरफ जाने का आहिस्ता आहिस्ता ड्राइविंग करनी चाहिए। Ihre Kinder immer begleiten, अपने बच्चों को साथ हमेशा साथ देना चाहिए, जाना चाहिए। Mit ihren Kindern den Schulweg üben, अपने बच्चों के साथ स्कूल के रास्ते की प्रैक्टिस करनी चाहिए। Liebe Eltern, प्यारे वालिदैन, damit alle Kinder sicher zur Schule kommen, bitten wir Sie um Ihre Mitarbeit, ताकि सारे बच्चे श्योर तरीके से, सिक्योर, महफूज तरीके से स्कूल आ सकें, हम रिक्वेस्ट करते हैं, दरख्वास्त करते हैं आपसे आपके ताउन की। Wenn Ihr Kind zu Fuß zur Schule geht, wählen Sie nicht den kürzesten Weg। जब आपका बच्चा पैदल स्कूल जाता है तो चूज़ करें या वो रास्ता जो कि सबसे छोटा है उसको ना चूज़ करें, sondern den sichersten, बल्कि वो रास्ता चूज़ करें जो कि महफूज तरीन हो। ये जिशा की लगी हुई है जुपलाटिव ना, हाईएस्ट फॉर्म, जो कि सबसे ज़्यादा महफूज हो। Gehen Sie am Anfang den Weg mehrmals mit Ihrem Kind gemeinsam und üben Sie an kritischen Stellen das richtige Verhalten im Straßenverkehr। तो शुरू में रास्ते को ज़्यादा बार अपने बच्चे के साथ मिलकर प्रैक्टिस करें और जाएं उस रास्ते पर, और हमेशा जो क्रिटिकल, जो ऐसे जगह हैं जिनमें ध्यान रखना है आपने अपने रवैये का कि सही रवैया हो, लाल बत्ती पे रुकने का और गाड़ियों के आने जाने को देखकर उस तरह का आप रवैया इख्तियार करें, ख़ास तौर पर ट्रैफिक के मामले में। Wenn Sie Ihr Kind mit dem Auto zur Schule bringen, achten Sie bitte darauf। जब आप अपने बच्चे को स्कूल गाड़ी पर लेकर आएं तो इस चीज़ का ध्यान रखें, dass es auf einem entsprechenden Kindersitz und angeschnallt ist। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि वो जो बच्चों की सीट है उसके अकॉर्डिंग उस पर हो, ना कि आपके साथ बैठा हो, और उसको ये कि बेल्ट्स में प्रॉपर बेल्ट आपने लगाई हो जो उसकी सीट की होती है उसके मुताबिक। Fahren Sie im Umkreis der Schule unbedingt langsam und vorsichtig। और चलें उस सर्कल जो स्कूल के पास का है उसमें हर हाल में आहिस्ता और ध्यान से। Da es immer wieder vorkommt, कि हमेशा ऐसा होता है, dass Kinder plötzlich über die Straße rennen, कि अचानक से बच्चे सड़कों पर भागना शुरू कर दें उस एरिया में क्योंकि स्कूल है। Und dabei nicht auf den Verkehr achten, और ये भागते हुए वो इस चीज़ का ध्यान नहीं करते कि गाड़ियों का कि आ रही हैं कि जा रही हैं। Ihre Schulleitung, आपकी स्कूल एडमिन। तो ये जो 33 था कि आपको हमेशा बच्चों को छोटे तरीन रास्ते पर लेकर आना चाहिए, बच्चों को वो रास्ता चूज़ करना चाहिए। यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ था कि छोटा तरीन बेशक मत हो लेकिन महफूज तरीन हो, तो इसलिए ये फाल्श है।
और 34 का आंसर से है कि Eltern sollen mit ihren Kindern den Schulweg üben। यहाँ पर लिखा हुआ था कि शुरू में ज़्यादा बार बच्चे के साथ मिलकर उस रास्ते की प्रैक्टिस करें, उनको आना जाना सिखाएं कि किस तरह से जब वो अकेले जाएंगे तो जाया करेंगे उस रास्ते पर। तो इसलिए से करेक्ट है। 35 है, Die Firma Teletronica GmbH kann auch an einem anderen Termin kommen। कि ये जो कंपनी है ये किसी और दिन भी अपॉइंटमेंट में आ सकती है। 36 Herr Demir soll vor dem 30.11. die Firma Teletronica GmbH anrufen। कि मिस्टर डेमीर को चाहिए कि 30 नवंबर से पहले कॉल करे इस कंपनी को, wenn er an dem Tag nicht zu Hause ist, जब वो उस दिन घर पर ना हो, wenn er Informationen zu seinem TV- und Radioempfang braucht, जब उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए अपने टीवी या रेडियो रिसीवर की, wenn er keinen neuen Anschluss möchte, जब वो कोई भी नया कनेक्शन नहीं चाहता हो। तो कंपनी की तरफ से ये लेटर आया है, sehr geehrter Herr Demir, die Kabelanlagen für TV- und Radioempfang werden in der Stettenstraße 19 von unserer Firma neu installiert। कि जो केबल का इक्विपमेंट है टीवी और रेडियो रिसीवर के लिए वो इस स्ट्रीट में हमारी कंपनी जो है उसको नया इंस्टॉल करेगी। Im Rahmen dieser Installationsarbeiten müssen wir am 30.11. zwischen 9 und 16 Uhr in Ihre Wohnung, Ihre privaten Kellerräume und auf den Dachboden। तो इसकी वजह से इस जो इंस्टॉलेशन का काम है इसकी वजह से हमें इस तारीख को इस टाइम के दरमियान में आपके अपार्टमेंट में, आपके खेला कहते हैं बेसमेंट में जो कमरा मिलता है हर अपार्टमेंट वालों को, उसमें और जो छत में आपका एरिया है उसमें, इन सभी जगहों पे हमें एक्सेस चाहिए इस दिन को इस टाइम के दरमियान। Sollten Sie zu dem geplanten Termin nicht zu Hause sein können, vereinbaren Sie bitte unbedingt frühzeitig einen neuen Termin mit uns unter। कि अगर आप प्लान की गई अपॉइंटमेंट पर घर पर नहीं होंगे तो आप बुक कर लें हर हाल में बहुत पहले, फ्रूसाइटिश टाइम से पहले एक नई अपॉइंटमेंट हमसे इस नंबर पर। आगे एक छोटी सी धमकी आई है कि die Einhaltung des Termins bzw. seine rechtzeitige Verschiebung wird dringend gebeten। कि ये जो अपॉइंटमेंट है इसकी जो नेचर है या फिर इसके सही टाइम पर पोस्टपोन करने की वजह से ज़रूरी आपको हर हाल में रिक्वेस्ट किया जाता है कि आप ये काम अगर नहीं मौजूद तो पहले ही हमें बता दें ताकि हम आपको बाद की अपॉइंटमेंट दे दें। Sollten wir an dem genannten Termin keinen Zugang zu Ihren Räumlichkeiten erhalten, कि अगर इस जो ऊपर टाइम दिया गया है, अपॉइंटमेंट दी गई है, इस दिए गए टाइम पर आपके जो इस सारे जगह हैं, आपका खेला गाउम है, वोनुंग है और डाक बोर्डन है, यहाँ पर हमें एंट्री नहीं मिली, तो फिर क्या होगा, kann es sein, फिर ये हो सकता है कि dass wir ihren Anschluss aus technischen Gründen abschalten müssen, कि फिर हमें आपका कनेक्शन जो है टेक्निकल बुनियादों पर वजूहात की वजह से तो ऑफ़ करना पड़ेगा। ये बिल्कुल जैसे हमारे केबल नहीं काटते इंडिया पाकिस्तान में, अगर बिल ना पे किया हो या कुछ गड़बड़ की हो, तो ये बिल्कुल वही कह रहे हैं कि फिर हमें आपका जो कनेक्शन है वो काटना पड़ेगा। और mit freundlichen Grüßen Teletronica GmbH। तो 35 में था कि कंपनी किसी और दिन भी अपॉइंटमेंट दे सकती है, ये रिश्तिश है क्योंकि उन्होंने हमें बताया हुआ है कि अगर आप नहीं घर पे तो हमें पहले ही बता दें, हम आपको नई अपॉइंटमेंट दे देते हैं। और इसी ही लाइन में यही आंसर था कि अगर वो 30 नवंबर से पहले फ़ोन करें या डेमिर, ताकि अगर वो उस दिन घर पर नहीं होंगे तो अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए उनको कॉल करनी पड़ेगी। इन दोनों से रिलेटेड हमें कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं दी गई। Teil 4. Lesen Sie den Text, entscheiden Sie, ob die Aussagen 37 bis 39 richtig oder falsch sind. Markieren Sie Ihre Lösungen für die Aufgaben
37 bis 39 auf dem Antwortbogen. 37. Die Ware wird immer innerhalb von 5 Werktagen geliefert. कि जो चीज़ है वो 5 वर्किंग डेज के अंदर अंदर ही हमेशा उसकी की जाएगी पोस्टेज ना डिलीवरी की जाएगी लीफर्न से geliefert उसका बना हुआ है. 38. Die Ware wird an Kunden in der ganzen Welt verschickt. कि जो चीज़ है वो कस्टमर्स को पूरी दुनिया में भेजी जा सकती है. 39. Bei Rücksendung der Ware muss der Kunde in bestimmten Fällen das Porto selbst bezahlen. कि जो वापस चीज़ का भेजना है उसके लिए कस्टमर को कुछ मखसूस केसों में पैसे खुद से पे करने पड़ेंगे वापस भेजने के. अब टेक्स्ट देख लेते हैं. Allgemeine Geschäftsbedingungen Trendmoden GmbH. जनरल जो कवायद और ज़वाबित हैं कारोबार के और ये कंपनी है और इसका ये नाम है. Vertragsabschluss कहते हैं मुआहदे का एख्तिताम. Conclusion of Contract ना. Ihr Vertragspartner ist die Trendmoden GmbH. आपका जो कॉन्ट्रैक्ट का पार्टनर है वो ये कंपनी है. Nachdem uns Ihre Bestellung erreicht hat, इसके बाद कि आपकी जो ऑर्डर है आपका हम तक पहुंच जाए, erhalten Sie eine Eingangsbestätigung. आपको मौसूल होगा एक एंट्री की कंफर्मेशन कि हमें आपका ऑर्डर मिल गया है. Anschließend erfolgt der Versand der Ware. तो उसके बाद क्या होगा कि फॉलो होगा जो सामान आपने मंगवाया है उसकी डिलीवरी का प्रोसेस. Versand कहते हैं डिलीवरी को, जो चीज़ भेजी जाए उसको. Sie erhalten Ihre Bestellung nach Möglichkeit in einer einzelnen Sendung, es sei denn, Ihre Bestellung enthält Artikel, die getrennt verpackt befördert werden müssen. कि आपका जो ऑर्डर है हो सकता है कि वो एक सेंडिंग में आए और हो सकता है कि उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हों जिनको अलग अलग पैक किया जाना चाहिए, तो उसको हम अलग अलग भेजेंगे. Oder erst zu einem späteren Zeitpunkt lieferbar sind. या तो उन चीज़ों को अलग भेजने का मकसद ये है कि उनको अलग अलग पैक करना चाहिए. एक दूसरी वजह ये हो सकती है कि उनमें से एक चीज़ जल्दी अवेलेबल है और एक चीज़ लेटर टाइम पर डिलीवरी के लिए अवेलेबल है. ये वजूहात हो सकती हैं. Wenn die Ware im Lager ist, जब चीज़ स्टॉक में हो, liefern wir in der Regel in 2 bis 5 Werktagen. जब चीज़ स्टॉक में हो तो हम उसको आम तौर पर अमूमी तौर पर इंडिया रेगल एज अ रूल जनरली हम उसको 2 से 5 वर्किंग डेज में करते हैं ना, डिलीवर पहुंचाते हैं. उसके बाद है इन jedem Fall jedoch schnellstmöglich. लेकिन ये है कि हर केस में हमारी कोशिश होती है जल्दी से जल्दी डिलीवरी की जाए चीज़ों की. Wir versenden nur an Lieferadressen innerhalb Deutschlands, Österreichs und der Schweiz. Bitte beachten Sie, dass die Rechnungsanschrift ebenfalls in Deutschland, Österreich oder der Schweiz sein muss. कि हम भेजते हैं चीज़ों को डिलीवर करते हैं सिर्फ उन्हीं पतों पर जो कि जर्मनी, ऑस्ट्रिया और स्विट्ज़रलैंड के अंदर हों. और ध्यान रखें कि जो पता है, जो बिल का पता है, हर हाल में वो इन तीनों मुल्कों में ही होना चाहिए. Versandkosten, भेजने की कीमतों के बारे में बता रहे हैं आप. Deutschland 4,95 € für Porto. डिलीवरी के लिए इतने पैसे चार्ज करेंगे जर्मनी में. Und Verpackung और पैकिंग के लिए, इन दोनों चीज़ों के लिए मिलाकर इतने. Entfällt ab einem Bestellwert von 125 €. ये चीज़ मुझे इतना गुस्सा दिलाती है ना जब कहीं लिखा हो कि मिनिमम इतनी होनी चाहिए, उसके बाद आपको फ्री डिलीवरी देंगे. और चेक करें कितना अमाउंट उन्होंने लिखा हुआ है कि इससे ऊपर अगर आप चीज़ें ऑर्डर करेंगे तो हम फिर आपको मुफ्त में डिलीवर करेंगे. एंटफेल्ट अब यानी ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी. ये जो 5 € हम अदा कर रहे हैं आम तौर पर, ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी अगर हमारे ऑर्डर की कीमत इतनी हुई तो, या इससे ज़्यादा भी. Österreich und Schweiz 7,95 € für Porto und Verpackung. ऑस्ट्रिया और स्विट्ज़रलैंड के लिए इतने पैसे लगेंगे इन दोनों चीज़ों के लिए.
सालुंग्स आर्ट पेमेंट का तरीका बताया गया है। डॉइचलैंड क्रेडिट कार्ड है, आगे डिफरेंट चीज़ें हैं, ओडर रेचनुंग या फिर बिल की अदायगी। Österreich und Schweiz Kreditkarte, wir behalten uns vor, die Zahlungsart gegebenenfalls zu ändern, कि हम ये राइट रिजर्व रखते हैं कि पेमेंट के मेथड को अगर एप्लीकेबल हो तो चेंज किया जा सके। Alle Preise beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum der ट्रेंड GmbH। कि ये जो सारी कीमतें हैं इसमें beinhalten कहते हैं कि ये कंटेन करता है, उसमें रखा हुआ है जो गवर्नमेंट की तरफ से इनकम टैक्स होता है, वैल्यू एडिड टैक्स होता है, उसमें चीज़ों में इंक्लूडेड है पहले से ही। और जो चीज़ है वो जब तक के मुकम्मल पेमेंट ना की जा सके या ना हुई हो तब तक वो प्रॉपर्टी रहती है हमारी कंपनी की। एक बार मैंने शूज़ ऑर्डर किए थे, उन्होंने भी ये पॉइंट लिखा हुआ था कि ये शूज़ तब तक हमारे हैं जब तक आपकी पेमेंट हमें मसूल नहीं हो जाएगी। तो ये वो पॉइंट है। ओके, उसके बाद है रुकगाबे बेलेगुंगन und रुकगाबे रेस्ट, कि जो वापसी है चीज़ों की, अगर आप वापस उनको भेजना चाहते हैं उनके बारे में गाइडलाइन और जो वापस देने का आपका हक है चीज़ को, उसके बारे में कुछ मालूमात हैं। Sie können die erhaltene Ware ohne Angabe von Gründen innerhalb von einer Monat zurücksenden, कि अपनी चीज़ को हासिल करने के बाद बगैर कोई मालूमात हमें दिए कि क्या वजह है कि क्यों आप वापस भेज रहे हो, आप 1 महीने के अंदर अंदर उस चीज़ को वापस भेज सकते हैं। Die Frist beginnt frühestens mit Erhalt der Ware, तो ये जो इसकी मुद्दत है 1 महीने की, वो शुरू कब होती है? तब शुरू होती है जब आपको पैकेट डिलीवर किया जाए। Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung der Ware, कि ये जो चीज़ आप वापस भेज रहे हैं और ये जो मुद्दत है इस चीज़ के लिए, अगर आप टाइम के अंदर अंदर भेज देते हैं तो फिर कोई मसला नहीं होना चाहिए। उसके बाद लिखा है bei einer Rücksendung von Waren bis zu einem Bestellwert von 40 Euro Bruttopreis zahlen Sie die Kosten der Rücksendung selbst, कि जो वापस चीज़ भिजवानी है उन चीज़ों की जिनकी ऑर्डर की कीमत 40 यूरो थी टोटल प्राइस, जो कि टैक्सेस काट के होती है, नहीं टैक्सेस समेत होती है बल्कि ब्रोटो, तो उसमें क्या है कि सालन जीडी, तो उसके में आपको वापस भेजने के पैसे खुद से अदा करने पड़ेंगे। Andernfalls ist der Rücksendung für Sie kostenfrei, और इसके अलावा जो वापस भेजने के चार्जेस हैं वो फ्री हैं। Bitte schicken Sie nur ausreichend frankierte Pakete zurück, कि सिर्फ उतने ही भेजें जिसमें ज़्यादा आपने स्टैम्प्स और ऑलरेडी प्री पे कर दिए हों बिल्स वगैरह उस पैकेट के, उस तरह हमें इनको वापस भेजें ताकि जब हम दोबारा आपको वापस भेजें तो उसके फिर हमें पैसे पे ना करने पड़ें। Da wir ansonsten Strafporto zahlen müssen und uns hierfür einen Abzug vom Rückerstattungsbetrag vorbehalten। आप वो कह रहे हैं यानी ठीक ठाक आप ऑलरेडी एडवांस में अपने पैकेट के स्टैम्प्स और प्रीपेड कार्ड्स वगैरह चिपका के भेजें ताकि फिर लेटर ऑन हमें जो है पेमेंट ना करनी पड़े, और इसके लिए भी ये चीज़ें हमें बता रहे हैं। और रुक या स्टार्टुंग कहते हैं दोबारा से पैसों की डिलीवरी को, तो जो फ़ी है उसके बारे में वो कह रहे हैं फ़ोआ बेहाल्टन, कि हम पहले से ही उसको रिज़र्व रखते हैं उस राइट को ना। उसके बाद पॉइंट है Datenschutz und Sicherheit, के जो डाटा प्रोटेक्शन है और सिक्योरिटी है, Ihre Daten werden ausschließlich im Rahmen der geltenden Datenschutzgesetze genutzt und verarbeitet, कि जो आपका डाटा है, आपका एड्रेस हो गया, नाम हो गया, फ़ोन नंबर अगर दिया था तो उसको हम एक्सक्लूसिवली इन अकॉर्डेंस विद जो एप्लीकेबल हैं डाटा प्रोटेक्शन के लॉज हैं उसके मुताबिक उनको इस्तेमाल किया जाएगा और प्रोसेस किया जाएगा। तो जो टेक्स्ट अभी हम पढ़ के आए हैं उसमें ये था कि innerhalb von 2 bis 5 Werktagen ना, तो ये फाल्श है क्योंकि इसमें लिखा हुआ है हमेशा सिर्फ 5 वर्किंग डेज़ में ही डिलीवर किया जाएगा, नहीं उन्होंने 2 से 5 लिखा हुआ था। Die Ware wird an Kunden in der ganzen Welt verschickt, ये भी करेक्ट नहीं था क्योंकि Österreich, Schweiz और Deutschland 3 मुल्कों में वो चीज़ें भेजेंगे जो कंपनी है। Bei Rücksendung der Ware muss der Kunde in bestimmten Fällen
das Porto selbst bezahlen, जो पेमेंट डिलीवरी की है, जो भेजने की कॉस्ट है, कुछ केसेस में कस्टमर को खुद से वापस चीज़ भेजने की कॉस्ट अदा करनी पड़ेगी। ये रिश्तिश है, क्योंकि उन्होंने कहा था अगर आपने चीज़ 40 यूरो से नीचे नीचे अदा की है तो आपको खुद पेमेंट करनी पड़ेगी चीज़ वापस भेजने की कॉस्ट, और अगर उससे ज़्यादा थी तो फिर आप उसको वापस फ्री में भेज सकते हैं। Lesen Teil 5, lesen Sie den Text und schließen Sie die Lücken 40 bis 45. Welche Lösung A, B oder C passt am besten? ये है जी हमारी बाइस्पील जो कि सॉल्व करके दिखाई गई है, और ये हमारे ऑप्शंस हैं सारी टास्क के लिए। तो ये है जी लेटर और उसके साथ की ब्लैंक्स, और ये उसकी ऑप्शंस हैं। अगर आप चाहें तो इस वीडियो को यहाँ पॉज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं और उसके बाद अपने आंसर्स को मैच कर सकते हैं। ओके जी, ज़िया ग्याटे उन्होंने पहले से मेंशन किया हुआ था, क्योंकि फ्राउ है, अगर हेया होता तो ज़िया ग्याटा होता। ज़िया ग्याटे फ्राउ श्नीट बिटे हेल्फन जी, आपको पता है हेल्फन के साथ क्या आता है, लेकिन हम अगली लाइन भी देख लेंगे ताकि उसकी अकॉर्डिंग ऑप्शन देखें। बिटे हेल्फन जी, ये हमने उन्स लिखना है क्योंकि आगे है unsere Buchhaltung hat den Betrag von 59 Euro 65 vom 10.3. noch nicht als Zahlungseingang feststellen। ठीक हो गया। वो कह रहा है कि हमारी अकाउंटिंग के मुताबिक ये जो अमाउंट है आपने हमें देनी थी 10 मार्च की, वो अभी तक एंटर नहीं हुई है। और ये देखते हैं कि आगे हम इसको क्या मार्क करेंगे। तो नेक्स्ट हम लिखेंगे noch nicht als Zahlungseingang feststellen können, कि हम उसको अभी तक डिटरमिन और देख नहीं सके, तो ये कहाँ पर können आएगा। उसके बाद है जी ब्लैंक में Sie in der Hektik des Alltags vergessen, कि क्या आप रोज़ दिनों की दौड़ भाग में हेक्टिक रूटीन जैसे आजकल मेरी हुई है उसमें भूल तो नहीं गई। तो यहाँ पर आप लिखेंगे haben और ये उसका परफेक्ट बन जाएगा। Den Rechnungsbetrag zu überweisen, क्या आप दिनों की दौड़ भाग में हेक्टिक रूटीन में भूल तो नहीं गई बिल को अदा करना। Wir bitten Sie in diesem Fall Zahlung innerhalb der 14 Tage, कि हम फिर रिक्वेस्ट करते हैं इस वजह से, अगर आप भूल गई हैं, कि पेमेंट कर दें अंदर अंदर 14 दिनों के। तो कौन से 14 दिन देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा जी नेक्स्टन, तो innerhalb der nächsten 14 Tage, तो आने वाले 14 दिनों के अंदर अंदर। Oder haben Sie den Betrag bezahlt, तो ये हो जाएगा schon already। Und wir konnten das Geld nicht richtig zuordnen, क्या आपने जो अमाउंट है ऑलरेडी पे कर दी है और हम पैसे को सही तरह से तरतीब नहीं दे सके। सुऑर्डन का यहाँ पर मतलब होगा, लेट मी चेक, मुझे भूल रहा है अभी। हाँ, मैच नहीं कर सके ना, उसको अपने रिकॉर्ड में देख नहीं सके हम। तो लास्ट में है bitten wir Zusendung des Zahlungsbeleg, तो dann bitten wir Zusendung des Zahlungsbeleg। तो इस केस में आप क्या करें कि हमें भेज दें पेमेंट की रिसीप्ट। Wir bedanken uns für Ihre Mithilfe, आपके ताउन का हम शुक्रिया अदा करते हैं। Mit freundlichem Gruß मारिया क्लाइडामान। तो ये था जी आज की वीडियो। आई एम सो सॉरी कि ये लेट आ रही है, क्योंकि आजकल मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ डिफरेंट कामों में, प्रोजेक्ट्स में और ऑनलाइन टीचिंग में। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो ने आपकी हेल्प की होगी। अगर की है तो अपने उन फ्रेंड्स के साथ जिनका जल्दी ही डेटा सेट एग्ज़ाम होने वाला है, उसके साथ इसको ज़रूर शेयर करें। और इस वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। ये आपको पसंद आई है, मुझे लाइक और कमेंट करके बताइए किन टॉपिक्स पर आप वीडियोस देखना चाहते हैं, ये भी मुझसे शेयर कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। चूस।